نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے خلاصہ قرآن کریم کی کلاس میں تیسرا پارہ شروع کرنا ہے، اور جن کو آواز نہیں آ رہی، یہ گروپ میں کچھ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی، آپ لوگ ان کو پلیز گائیڈ کر دیجیے چیٹ میں، کیونکہ میری آواز ان کو جا نہیں رہی۔ ان کو بتائیں کہ لیفٹ سائڈ پہ باٹم میں جو ہیڈ فون والا آئیکن ہے اس کو آن کریں گے، اور پھر اس کو ٹیپ کریں گے، اور وہاں پہ سیلولر ڈیٹا کی آپشن ہوگی، اس کو کلک کریں گے۔ پلیز کوئی ان کو چیٹ میں گائیڈ کر دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، چلیں شروع کرتے ہیں۔ تیسرے پارے میں تیسرے پارے کے سٹارٹ میں ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دوسری بلکہ تیسری آیت کے اندر اپنا تعارف کرایا ہے، اور اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیسے کرایا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، یعنی اس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ تو کوئی نیند آتی ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اور زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہی ان کا مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کون ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ تنہا مالک ہے اس کائنات کا بھی، اس زندگی کا بھی، اور اس کے بعد آنے والی زندگی کا بھی، اور بالخصوص یوم حساب کا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے، اور کہ یہ کہے کہ اللہ اس کے لیے اس کو بخش دینا یا اس کا فلاں کام کر دینا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس کی سفارش کر سکے، الا باذنہ، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکے گا، اور جس بندے کے بارے میں یہ اجازت دیں گے کہ ہاں تم اس بندے کی سفارش کر دو، تو وہ اسی بندے کی سفارش کر سکے گا، اپنی مرضی سے کسی بندے کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں جو ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں، یہ غائب اور پوشیدہ کا لفظ تو صرف انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ کے سامنے سب کچھ ظاہر ہی ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ اپنے علم میں سے جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عنایت کرتے ہیں۔ اللہ کے چاہنے کے بغیر ہم اس کے علم میں سے ایک ذرہ تک نہیں لے سکتے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو کرسی ہے، وہ پوری کائنات پر، آسمانوں اور زمینوں سب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آسمانوں اور اس زمین کا اور اس پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، تو اس چلانے میں ولا یؤودہ حفظہما، وہ یہ ان کی حفاظت کرنا، ان کا نظام چلانا اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو تھک سکے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا اور عظمت، اور وہ بہت بڑی اور عظمت والی ذات ہے، بہت بڑا اور عظمت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بہت ہی کمپریہنسو قسم کا تعارف کروایا ہے، اور میں نے تو چند منٹوں کے اندر یہ آیت بیان کر دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پہ کئی ایک لیکچر رکھے جائیں۔ یہ جتنے آپ کو جملوں کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں الگ الگ کر کے میں نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ہر ایک پہ ایک الگ لیکچر دیا جا سکتا ہے۔
बहरहाल हमारा मकसद यहाँ पे खुलासा है, तो हम इसको खुलासा ही बयान करेंगे। तीसरे पारे की सबसे पहली आयत जो है, उसमें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में कुछ बयान किया गया है, उनके फ़ज़ाइल के बारे में। और ये बताया गया है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जो हैं वो बाज़ अम्बिया को बाज़ पे फजीलत हासिल है, बाज़ अम्बिया को बाज़ पे फजीलत हासिल है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से कुछ ऐसे अम्बिया हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से बात बात की है डायरेक्ट, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने। और अल्लाह ताला ने बाज़ के दर्जात बुलंद किए हैं। तो हमारा काम क्या है? अब बाज़ को बाज़ पे फजीलत तो अल्लाह ताला ने दे दी है, लेकिन इसमें हमारे लिए क्या सबक है कि हमने इन सब अम्बिया पे ईमान लाना है, पहली बात। ठीक है। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुली, हम अम्बिया के दरमियान किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं करते। इस लिहाज से हम कोई फ़र्क नहीं करते कि किसी को हम नबी माने और किसी को कहें कि वो नबी नहीं है। इस लिहाज से हम अम्बिया के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते, बल्कि हम आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने वाले जितने भी अम्बिया हैं, उन सब पर हम ईमान लाते हैं। हम इस लिहाज से उनमें कोई फ़र्क नहीं करते। हाँ, बाज़ अम्बिया को बाज़ पे फजीलत हासिल है, और हमारा ये ईमान है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब अम्बिया से अफजल थे, उन सब के इमाम थे और ख़ातमुन नबिय्यीन थे। इसमें एक और अहम बात जो जहन में रखने की है कि हमारे यहाँ आम लोग तो क्या, बहुत से उलमा तक ये गलती कर जाते हैं कि अपने नबी यानी हमारे जो नबी हैं उनकी उनके फ़ज़ाइल को बताते बताते दूसरे अम्बिया के फ़ज़ाइल को घटाना शुरू कर देते हैं। यानी ये असूल है कि किसी नबी की का इस तरह जिक्र करना कि उसकी तौहीन हो, उसकी उसके नबी होने की शान में कमी आए, ये जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम अगर ये कहें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न उनका बहुत ज़्यादा था, उनकी उनका जो हुस्न है वो ज़रबुल मिसल है। ठीक है। तो अगर हम ये कहना शुरू कर दें, इस अंदाज में कहना शुरू कर दें कि यूसुफ का हुस्न क्या था, हमारे नबी का हुस्न तो उससे बहुत ज़्यादा था, उनका हुस्न तो कुछ भी नहीं था। यानी अगर इस अंदाज से हम बात करें, बात तो ये ठीक है कि हमारे नबी जो हैं वो ज़्यादा हसीन हैं, ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन हम अगर इस अंदाज से बात करें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की तौहीन हो, इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम की तौहीन हो। या एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अल्लाह ताला ने अभी इस पहली आयत में जिक्र किया वमिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से बाज़ अम्बिया ऐसे हैं जिनको हमने ये शर्फ अता किया है कि उन्होंने अल्लाह ताला से बराह रास्त कलाम किया, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो अगर हम यूं कहें कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ज़मीन पे कलाम किया, तो इसमें क्या बड़ी बात है? हमारे नबी ने तो अर्श पे जाके अल्लाह से कलाम किया। तो इससे बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन हो रही है। तो ये इस अंदाज से बात करना ये जायज़ नहीं है। इसके बाद शफाअत का बयान आया है, आयतुल कुर्सी के अंदर भी आया है। मैंने आपको पिछले पारे के खुलासे में बताया था कि ये कुछ लोग कह रहे हैं चैट में कि उनका उनको आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ उनको गाइड कर दीजिए। शफाअत के बारे में मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी से पहले 3 मुकामात पर ये फरमाया है कि क़यामत के दिन किसी की कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। 3 मुकामात पर। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। एक आयत, एक और आयत बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के साथ पहले पारे के आखिर में भी आई है। थोड़े से अल्फाज की रद्द बदल है, लेकिन तर्जुमा बिल्कुल यही है। और तीसरी आयत जो आई है वो आयतुल कुर्सी से पहले वाली आयत है, और वो आयत है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ाअ। ये फिर अल्लाह ताला ने तीसरी दफ़ा सूरह बकरा के अंदर ये बात कही है कि वहाँ पे कोई भी शिफात, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। और फिर चौथी मर्तबा अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी में एक जो है वो क्लू दिया है कि सिफारिश जो है वो सिर्फ एक तरीके से काम आ सकती है। वो ये है कि अल्लाह ताला किसी को इजाज़त दे दें कि वो किसी बंदे के बारे में सिफारिश करे। तो हमें हम हमारा ये ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे अपने उम्मतियों की। तो इस पे हमारा ईमान है और ये बिल्कुल बरहक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे। लेकिन यहाँ भी आपने शायद सुना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी न जाने कितने वक्त तक अल्लाह के हजूर, अल्लाह के अर्श के साए में सजदे में पड़े रहेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला मुझे वो कलिमात सिखाएगा अपनी तारीफ के, अपनी हम्द के, जो उससे पहले जिन अल्फाज में उससे पहले किसी ने अल्लाह की तारीफ नहीं की होगी, वो मुझे भी नहीं पता, वो उस वक्त अल्लाह ताला मुझे सिखाएंगे। तो उस वक्त अल्लाह ताला उनको वो कलिमात सिखाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के नीचे सजदे में वो उन कलिमात में अपने रब की तस्बीह करेंगे। और फिर अल्लाह ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उठाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं। तो वो उस वक्त ये शिफात करेंगे, ये अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे कि ए अल्लाह हिसाब किताब शुरू किया जाए। ठीक है, ये इस चीज की सिफारिश करेंगे कि हिसाब किताब शुरू किया जाए। तो ये इसको शिफात कुबरा कहा जाता है, जिससे हर इंसान को फायदा होगा, चाहे वो मुसलमान है या काफिर है। यानी आपने ये भी सुना होगा कि रोजे हशर में जब सारे लोग खड़े होंगे, इसका इंतजार कर रहे होंगे हिसाब किताब शुरू हो जाए, और वो दिन इतना सख्त होगा कि लोग कहेंगे कि अल्लाह हमें जहन्नम में डाल दे, चाहे हमें जहन्नम में डाल दे, पर खुदारा ये हिसाब किताब शुरू हो। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिफारिश करेंगे कि हिसाब किताब शुरू हो, और वो भी अल्लाह के इज़्न से करेंगे, अल्लाह की इजाज़त से करेंगे। तो इसको शफाअत कुबरा कहा जाता है। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी जो है वो अपने उम्मतियों की सिफारिश करेंगे मुख्तलिफ मकामात पर। और फिर ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि अल्लाह ताला कुछ और लोगों को भी ये शर्फ अता करेंगे कि वो भी लोगों की सिफारिश करें। तो बहरहाल ये चीज़ हमें नहीं बोलनी चाहिए कि जो सिफारिश है, जो शिफात है, वो अल्लाह ही के इज़्न से होगी। यानी ऐसा इस गलत फहमी में हमें हरगिज मुब्तला नहीं रहना चाहिए कि हम जो काम मर्जी करते रहें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात करके हमें जन्नत में ले जाएंगे। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला इस दुनिया में हमारा ईमान ही सल्ब कर लें, हमारे मौत से पहले अल्लाह ताला हमारा ईमान ही सल्ब कर लें। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात कैसे करेंगे? तो अल्लाह इस चीज़ से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए, और हर वक्त अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत फरमा। इसके बाद अल्लाह ताला ने दीन को कबूल करने में कराहत नहीं है, इस बात का जिक्र किया है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई कराहत नहीं है, दीन में कोई जबर, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कुछ लोग इस आयत का गलत मफहूम लेते हैं, और जब उनसे दीन के अहकामात पे किसी बात पे सख्ती की जाती है तो वो ये कहते हैं कि दीन में तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। किसी को नमाज पढ़ने का बोलो और उसे ये कहो कि अगर तुमने नमाज ना पढ़ी तो तुम्हें सजा मिलेगी, तो वो तो कहेगा कि दीन में तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर किसी को रोज़ा रखने का कहो और वो कहता है कि मुझे तो मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं तो रोज़ा नहीं रख सकता, मेरी तो सेहत ही ठीक नहीं है, और फिर जब उससे थोड़ी ज़बरदस्ती करो तो वो कहेगा कि दीन में तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जबर नहीं है। ये लोग इस आयत से गलत इस्तदलाल करते हैं। इस आयत का जो असल मतलब है वो ये है कि दीन को कबूल करने में
कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यानी अगर कोई आदमी काफिर है तो हम उसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। हाँ, जब वो इस्लाम में दाखिल हो गया, या जो लोग मुसलमान हैं, हम लोग जो मुसलमान हैं, हमारे हमारे यहाँ तो समझ लें ज़बरदस्ती ही दूसरे अल्फाज से ज़बरदस्ती नहीं है, आप इसको यूं कहें कि पाबंदी ही पाबंदी है। यानी हम इस्लाम का तो मतलब ही यही है कि तुम सर तस्लीम खम कर लो, सर झुका लो। इस्लाम तो कहते ही इसको हैं। इस्लाम तो कहते ही इसको हैं कि अपने अल्लाह ताला को अपना मालिक मान लेना, और खुद अल्लाह के गुलाम बन जाना, और अल्लाह के अहकामात की इताअत करना। तो जब हमने अपने आप को अल्लाह ताला की इताअत में दे दिया है, तो फिर हम आज़ाद किस बात के हुए? हम कहाँ के आज़ाद हुए? तो इसला याद रखिए कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम अल्लाह के गुलाम हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद जो बादशाह था उसका जिक्र किया, और उनका एक छोटा सा मुकालमा अल्लाह ताला ने बयान किया है। और वो मुकालमा कुछ इस तरह है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में पेश किया गया, उसके बाद जब उन्होंने बुतों को तोड़ा था, तो नमरूद ने उनसे कहा कि तुम्हारा अपने खुदा के बारे में बताओ। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब से कहा, ये मैं आयत ज़रा शुरू से देख लेता हूँ कैसे है हाल। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। क्या आपने नहीं देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो बादशाह था, जिसको अल्लाह ताला ने बादशाहत दी थी, वो कैसे झगड़ा कर रहा था? जब उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं जिंदगी और मौत देता हूँ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो लोगों को जिंदा करता है और मारता है, तो वो बादशाह कहने लगा, अना उही व उमीत, मैं भी जिंदा करता और मारता हूँ। और रवायत में आता है कि उसने एक आदमी को बुला के जिसे सजाए मौत जिसे मौत का सजाए मौत देने का फैसला हो चुका था, उसको उसने आज़ाद कर दिया। उसने कहा, देखो इस आदमी ने मर जाना था, मैंने इसे आज़ाद कर दिया, इसे जिंदगी दे दी। और एक आदमी जो बेगुनाह था कैद में, उसको लाके कत्ल कर दिया, और कहा कि देखो मैंने इसको मौत दे दी है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़इन्नल्लाह यअति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, कि मेरा अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम ऐसा करो कि इसे मगरिब से निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पे वो जो नमरूद था वो लाजवाब हो गया, और उससे और कुछ ना बन पड़ा तो उन्हें आग में डालने का हुक्म दे दिया। इस वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने दो और वाक़यात बयान किए हैं, और इन वाक़यात से ये पता चलता है कि मुर्दों को अल्लाह ताला ने वाकई ज़िंदा करना है। पहला वाक़या उज़ैर अलैहिस्सलाम का है, कि अल्लाह तो वो एक बस्ती से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि वो बस्ती बिल्कुल तबाह व बर्बाद हुई पड़ी थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, ये बस्ती भी कभी आबाद होगी, यहाँ भी कभी दोबारा से इंसानियत आएगी, इंसान आबाद होंगे, यहाँ भी कभी चहल पहल होगी। तो अल्लाह ताला ने उनको उसी बस्ती में 100 साल तक के लिए मौत दे दी, और 100 साल बाद उनको जिंदा किया। और जब उनको जिंदा किया तो उनसे पूछा कि आप कितना वक्त रहे? उन्होंने कहा, शायद एक दिन रहा हूँ, या दिन का कुछ हिस्सा। तो अल्लाह ताला ने कहा, अपने गधे की तरफ देखें। जब उन्होंने अपने गधे की तरफ देखा तो उसका ढांचा वहां पड़ा था, हड्डियां उसकी पड़ी हुई थी। तब उन्हें बताया गया कि आप यहाँ पे 100 साल रहे हैं। फिर उनके सामने उस गधे को जिंदा किया गया। इस तरह उनको ये बताया गया कि जिस तरह हम इस गधे को जिंदा कर सकते हैं, इसी तरह हम इस बस्ती को आबाद करने में भी कादिर हैं। दूसरा वाकया जो बयान हुआ है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह, आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं? अल्लाह ताला ने ये बताया कि अल्लाह ताला ने पूछा कि इब्राहीम, आपको यकीन नहीं है कि हम मुर्दों को जिंदा करेंगे? आपको यकीन नहीं है कि हम मुर्दों को जिंदा करेंगे? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ यकीन है, लेकिन मैं दिल की तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आप परिंदों को लें,
कुछ परिंदों को लें, उनको अपने साथ हिलाएं, जिस तरह परिंदे बंदों के साथ घुल मिल जाते हैं, इस तरह परिंदों को हिलाएं ताकि वो आपकी आवाज़ मतलब आपकी आवाज़ को पहचान लें। उनको पता चल जाए कि यही मेरा मालिक है, यही मेरा मुझे हमें खाना देने वाला है, यही हमें पालने वाला है। और फिर आप उन परिंदों के जो हिस्से हैं उनको आप पहाड़ों पे रख दें। उनको परिंदों को मार के उनके हिस्से पहाड़ों पे रख दें, और फिर आप उनको आवाज़ दें तो वो आपकी तरफ भागते चले आएंगे। तो इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये यकीन दिलाया गया कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करते हैं। इस आयत का एक और मफहूम जो है वो भी हो सकता है कि जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कहा गया ना कि आप परिंदों को पहले अपने साथ हिलाएं, उनको कुछ अरसा पालें, उनको खिलाएं पिलाएं ताकि उनको पता चल जाए कि हमारा मालिक ये है। और फिर आप ये एक और मफहूम इस आयत का मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और फिर आप उनको पहाड़ों के ऊपर, उन जिंदा परिंदों को मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर जाके छोड़ें, और फिर नीचे खड़े होके आप उनको आवाज़ लगाएं, तो वो अपने मालिक की आवाज़ को पहचान लेंगे और दौड़ते हुए आपकी तरफ आ जाएंगे। तो इसी तरह जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये जो मुर्दे हैं, ये जो कब्रों में पड़े हुए होंगे, तो जब अल्लाह ताला की तरफ से सूर फूंका जाएगा तो वो उस आवाज़ को पहचान लेंगे और फौरन से उठ खड़े होकर अल्लाह ताला के हजूर में चल पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद काफ़ी सारी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत तफसील के साथ इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जिक्र किया है, अल्लाह की राह में खर्च करने का जिक्र किया है। क्या क्या हमें हिदायत दी गई हैं अल्लाह की राह में खर्च करने के हवाले से। सबसे पहले तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ना, उनकी एक मिसाल दी गई है। वो मिसाल ऐसी है, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे ये एक दाना है। दाना नजर आ रहा है ना आपको? जैसे ये एक दाना है, इस दाने को जब हम जमीन में बोते हैं तो इससे 7 बालियां निकले। यानी उस शख्स की मिसाल जो अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करता है, उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे उसने एक दाना जमीन में बोया और उससे 7 बालियां निकली, और उसमें से हर एक बाली के अंदर 100 दाने हुए। इस तरह उन 7 बालियों के अंदर 700 दाने हुए। तो एक दाने से कितने दाने बने? 700 दाने बने। यानी जो आदमी अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करता है, उसको अल्लाह की राह में 700 रुपये खर्च करने का सवाब मिलता है। और जो आदमी अल्लाह की राह में 10 रुपये खर्च करता है, उसे 7,000 रुपये खर्च करने का सवाब मिलता है। और जो आदमी अल्लाह की राह में 100 रुपया खर्च करता है, उसे 70,000 रुपये खर्च करने का सवाब मिलता है। यानी आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं, आप देखें कि आप बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट अल्लाह की राह में खर्च करें तो अल्लाह ताला उसको कितना जखीरा करके देते हैं आपको। यानी अगर आप यहाँ पे 1,000 रुपये खर्च करते हैं, मिसाल अगर 100 रुपये ही खर्च करते हैं, तो कल क़यामत के दिन वो 70,000 रुपये आपके नामे आमाल में इन्फाक फी सबीलिल्लाह के कॉलम के अंदर लिखा होगा। और आप देख देख के हैरान हो रहे होंगे कि अल्लाह, मेरे पास तो इतना माल सारी जिंदगी नहीं आया, तो मैंने ये इन्फाक कैसे कर दिया। तो ये सबक है उन लोगों के लिए जो ये सोचते रहते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं, हम अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। तो अल्लाह आपके पास जो कुछ है, बेशक 1 रुपया क्यों ना हो, उसको अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च करें। और इसके बाद हमें ये भी बताया गया है कि अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा बढ़ा के दे सकते हैं। यानी ये तो कम से कम है, अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं इससे भी ज़्यादा बढ़ा के देते हैं। और ये डिपेंड करता है हमारे इखलास के ऊपर। जितना हमारा इखलास इखलास ज़्यादा होगा, उतना ही अल्लाह ताला इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। और फिर हमें ये भी ताकीद की गई है कि जब हम सदका करें, जब हम इन्फाक फी सबीलिल्लाह करें, तो हमें जिताना नहीं चाहिए। जिस बंदे को दें, फिर उसे जिताएं नहीं कि मैंने तुम पे बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ये तुम्हारे साथ बड़ी नेकी की है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा करेंगे
ان کا وہ صدقہ ضائع ہو جائے گا، انہیں اس کا ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ہوگا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ نہ کرو، اس کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ پاک اور طیب چیزیں خرچ کرو، اور زمین میں جو فصلیں ہوتی ہیں ان میں سے بھی خرچ کرو۔ اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر تم نے انفاق کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو تم غریب ہو جاؤ گے، تم مفلس ہو جاؤ گے، تم خود کہاں سے کھاؤ گے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیا، یعنی اگر ہم مسجد کا چندہ، مدرسے کا چندہ دیتے ہیں اور ویلفیئر کے کاموں میں ہم خرچ کرتے ہیں، تو ہم خود کہاں سے کھائیں۔ تو ایسے یہ جو سوچ ہے یہ شیطانی سوچ ہے۔ شیطان انفاق فی سبیل اللہ سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو غریب ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس انفاق فی سبیل اللہ کے بدلے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں واللہ یعیدکم مغفرتا وفضلا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے میری راہ میں خرچ کیا تو میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور دوسرا تمہارے رزق میں برکت عطا کر دوں گا، تمہیں فضل عطا کروں گا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صدقات اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طریقوں سے دیا جا سکتا ہے، دونوں طریقوں سے دینا صحیح ہے۔ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہی، اگر تم صدقات ظاہری طور پہ دو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپا کے دو، خفیہ طریقے سے دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اعلانیہ دینے میں بھی کوئی آر نہیں ہے۔ اعلانیہ دینا اس لیے دینا چاہیے کہ دوسروں کو ترغیب ہو اور وہ بھی صدقہ و خیرات کریں۔ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن کی سب سے آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لیکن یہ قرآن کی سب سے آخری آیت نہیں ہے۔ قرآن کی جو سب سے آخری آیت ہے وہ سورہ بقرہ کے آخر میں آئی ہے۔ ٹھیک وہ آیت جو سب سے بڑی آیت ہے قرآن کریم کے اندر، اس سے پہلے یہ آیت آتی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے بعد سود کا ذکر آتا ہے تیسرے پارے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی گندگی کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ سود جو ہے، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں، اور جو تجارت ہے اس کو بڑھاتے ہیں، اس میں برکت عطا کرتے ہیں۔ بظاہر تو ہمیں سود کا مال یہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم سود لیں گے تو یہ ہمارا مال زیادہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو گھٹاتے ہیں، اس کو کم کرتے جاتے ہیں، اور تجارت کو بڑھاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ سود نہیں چھوڑتے، جو لوگ سودی کاروبار، سود کا لین اور دین دونوں، سود کا لین اور دین دونوں، صرف سود لینا گناہ نہیں ہے، سود دینا بھی گناہ ہے۔ صرف سود دینا گناہ نہیں ہے، سود لینا مطلب دونوں گناہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان جو لوگ سود نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وعید سنائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اور اس کی یہ بہت سخت بات ہے۔ آپ ذرا یہ گمان کریں کہ غزوہ بدر ہے اور آپ کفار کی صف میں کھڑے ہیں، آپ ذرا یہ گمان کریں کہ غزوہ احد ہے اور اللہ کے رسول جو ہے وہ اللہ کے رسول ایک گڑھے میں گر گئے ہیں، ان کے دان شہید ہو گئے ہیں، اور اس کا گناہ آپ کے سر ہے، یعنی آپ مشرکین کی صف میں کھڑے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں اس سے پناہ دے۔ تو ذرا یہ آپ سوچیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آج کل کے دور میں لوگ جو ہے وہ بہت سے طریقوں سے سودی کاروبار، سودی لین دین میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سیکھیں، جب بھی کوئی خرید و فروخت کریں ہمیں علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ سود تو نہیں ہے۔ جب ہم بینکوں کے ذریعے سے کوئی چیز لیں، جب ہم قسطوں پہ کوئی چیز لیں، جب ہم کمپنیوں سے کوئی چیز لیں، تو ہمیں علماء کرام سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ کہیں یہ سود تو نہیں ہے۔ اور اس طرح کمپنیز بہت ساری آفرز دیتی ہیں، ایزی پیسہ والے ہو گئے، اور یہ جو کمپنیز ہیں
یہ بھی بہت ساری آفرز دیتی ہیں جس میں سود ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے انشورنس وغیرہ، یہ بہت سے مسائل ہیں سود کے، ہمیں علماء کرام سے پوچھنا چاہیے.